فلم کا آغاز کینو نامی ایک کمپنی سے ہوتا ہے جو ٹک ٹاک جیسا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلاتی ہے۔ یہاں ہماری ملاقات مارگو نامی ایک خاتون سے ہوتی ہے جو وہاں کانٹینٹ ماڈریٹر کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ طے کرنا ہوتی ہے کہ کون سی ویڈیوز پلیٹ فارم پر دکھانے کے لیے منظور کی جائیں اور کون سی حد سے زیادہ خوفناک یا پریشان کن ہونے کی وجہ سے ہٹا دی جائیں۔ کام کے دوران اس کی نظر ایک ویڈیو پر پڑتی ہے جس میں ایک شخص یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ماضی میں عوامی پھانسیاں جرائم کی روک تھام کے لیے بطور سزا استعمال کی جاتی تھیں۔ ویڈیو میں کئی پتلے ایک ایسے شخص کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک میز پر جھکا ہوا ہوتا ہے، جبکہ ان میں سے ایک پتلا اس کے سر کے اوپر ایک بہت بڑی دھاردار تلوار تھامے کھڑا ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ تلوار نیچے آتی ہے اور اس شخص کا سر بے رحمی سے دھڑ سے جدا کر دیتی ہے۔ تاہم مارگو یہ سمجھ کر ویڈیو کو منظور کر دیتی ہے کہ شاید یہ سب صرف جعلی یا اسپیشل ایفیکٹس کا کمال ہے۔ بعد میں مارگو کام سے فارغ ہو کر گھر واپس آتی ہے جہاں اس کی ملاقات اپنی روم میٹ رائن سے ہوتی ہے جو ایک آرٹسٹ ہے اور ہارر فلموں کا بے حد شوقین ہے۔ رائن اسے اس رات اپنے ایک دوست کی پارٹی میں چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ مارگو پہلے کافی ہچکچاہٹ کا شکار ہوتی ہے لیکن رائن کے بار بار اصرار کرنے پر آخرکار جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر رائن بہت خوش ہو جاتا ہے اور مارگو کو اپنی بنائی ہوئی ایک آرٹ پیس دکھاتا ہے جو بظاہر ایک لپسٹک کی ٹیوب ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی چھپی ہوئی بلیڈ لگی ہوتی ہے۔ پارٹی کی طرف جاتے ہوئے دونوں راستے میں ایک دکان پر ڈرنکس خریدنے کے لیے رکتے ہیں جہاں دو لڑکیاں بڑی دلچسپی اور غور سے مارگو کو دیکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی مارگو سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ وہی لڑکی ہے جو ٹرین والی وائرل ویڈیو میں نظر آئی تھی۔ یہ سوال سنتے ہی مارگو شدید پریشان ہو جاتی ہے اور فوراً وہاں سے غصے میں نکل جاتی ہے۔ بعد میں گھر پہنچ کر وہ اپنی بہن کی پرانی تصویریں دیکھتی ہے اور اس کی بھیجی ہوئی وائس میلز سنتی ہے جس سے وہ بے حد جذباتی ہو جاتی ہے۔ اسی دوران اسے اپنی بہن کے روتے ہوئے لمحات بار بار یاد آنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی انتہائی خوفناک واقعہ پیش آیا تھا اور اب اس کی بہن زندہ نہیں رہی۔ اگلے دن مارگو حسب معمول اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے کہ اچانک اسے اسی نریٹر کی ایک اور پتلوں والی ویڈیو نظر آتی ہے۔ اس بار ویڈیو میں ایک شخص کو الیکٹرک چیئر سے باندھا گیا ہوتا ہے اور پھر اس کے جسم میں انتہائی طاقتور بجلی کا کرنٹ دوڑا دیا جاتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں اس کا جسم بری طرح تڑپنے لگتا ہے، اس کی آنکھیں ابھر آتی ہیں اور ان سے خون بہنے لگتا ہے اور وہ شدید اذیت کے بعد دم توڑ دیتا ہے۔ یہ منظر مارگو کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے، چنانچہ وہ اپنے باس جوش کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک مشکوک ویڈیو دیکھی تھی۔ پہلے تو مارگو سمجھتی تھی کہ یہ سب جعلی ہے لیکن اب اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ شخص واقعی تکلیف میں مر رہا ہے۔ تاہم جوش اس کی بات کو رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب فرضی ہے اور آج کل DIY ہارر ٹرینڈ کر رہا ہے، اس لیے انہیں وہی مواد منظور کرنا ہوگا جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجبوری کے تحت مارگو آخرکار اس ویڈیو کو منظور کر دیتی ہے۔ اسی دوران اسے ٹرین والے واقعے کی یادیں ستانے لگتی ہیں جس سے وہ شدید ذہنی دباؤ میں آ جاتی ہے اور فوراً باتھ روم کی طرف بھاگ کر روتی ہوئی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک اور منظر میں ہم آرتھر نامی ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کینو پر ویڈیوز اسکرول کر رہا ہوتا ہے جب اس کی نظر ایک انفلوئنسر لڑکی کی ویڈیو پر پڑتی ہے جو اسے فوراً متوجہ کر لیتی ہے۔ وہ اس کی مزید کئی ویڈیوز دیکھتا ہے اور پھر اپنے کام کی وجہ سے جو اسے ایک انٹرنیٹ پرووائڈر کے ڈیٹا بیس تک رسائی دیتا ہے وہ اس کا نام تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کافی تلاش کے بعد وہ اس کا پورا نام اور پتہ سسٹم میں ڈھونڈ لیتا ہے جس سے وہ غیر معمولی طور پر پرجوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد منظر سمینتھا نامی لڑکی کی طرف کٹ ہوتا ہے جو وہی انفلوئنسر ہے اور وہ اپنی دوست کے ساتھ سوئمنگ پول میں ڈانس ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہے۔ بعد میں سمینتھا باتھ روم جاتی ہے تاکہ آئینے کے سامنے کچھ سیلفیاں لے سکے لیکن اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ پھر اسے اپنی ہی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ آواز کے پیچھے جاتی ہے تو دیوار پر چپکا ہوا ایک فون نظر آتا ہے جس پر اس کی ہی ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اچانک ایک ماسک پہنے شخص کہیں سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ شخص زبردستی اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے ایک انجیکشن لگا دیتا ہے جس کے بعد سمینتھا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف مارگو دوبارہ اپنے کام پر ہوتی ہے اور دن گزارنے کے لیے اسٹیمولنٹس لے رہی ہوتی ہے جبکہ ویڈیوز کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران اسے ایک اور ویڈیو ملتی ہے جو اسی نریٹر کی ہوتی ہے۔ اس بار ویڈیو میں ایک شخص کو 3 پتلوں کے ذریعے بے رحمی سے ہتھوڑوں سے مار کر قتل کیا جاتا ہے اور پھر اس کے دماغ کو نکال کر ان پتلوں کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک منظر مارگو کو بری طرح ہلا کر رکھ دیتا ہے اور وہ فوراً اس ویڈیو کو فلیگ کر دیتی ہے۔ اگلے دن مارگو کمپنی کی ایک پکنک میں موجود ہوتی ہے جو ساحل سمندر کے قریب ہوتی ہے۔ وہ جوش کو بتاتی ہے کہ اس نے ایک اور پتلوں والی ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک شخص کا سر بری طرح کچلا جا رہا تھا لیکن جوش اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ دفتر کے باہر کام سے متعلق بات کرنا منع ہے۔ وہ اسے یہ بھی وارننگ کرتا ہے کہ وہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کرے اور یاد دلاتا ہے کہ اس نے اسے اس کے مسائل والے ماضی کے باوجود یہ نوکری دی تھی۔ اس بات سے مارگو شدید ذہنی دباؤ اور غصے میں آ جاتی ہے اور پھر ایک فلیش بیک کے ذریعے پہلی بار اس کے ماضی میں پیش آنے والا واقعہ دکھایا جاتا ہے۔ فلیش بیک میں ظاہر ہوتا ہے کہ مارگو اور اس کی بہن ٹرین کی پٹریوں کے قریب ایک ڈانس ویڈیو بنا رہی تھی۔
जैसे ही एक ट्रेन करीब आती है, दोनों वहां से हटने की कोशिश करती हैं, मगर इसी दौरान मार्गो की बहन फिसल कर पटरियों पर गिर जाती है। ट्रेन के आने की वजह से एक खौफनाक हादसा पेश आता है और उसकी बहन की जान चली जाती है। ये पूरा दिल दहला देने वाला वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके बाद मार्गो इंटरनेट पर बदनाम हो जाती है। रात के वक्त मार्गो इंटरनेट पर रेडिट खोलती है और वहां वो इस डिस्टर्बिंग सर कलम किए जाने वाली वीडियो का लिंक पोस्ट करती है और लोगों से पूछती है कि क्या ये सच है या नहीं। जल्द ही उसे कई कमेंट्स मिलते हैं जिनमें लोग कहते हैं कि ये वीडियो 100% हकीकी लगती है। इसके बाद मार्गो एक और लिंक शेयर करती है जो इलेक्ट्रिक चेयर वाली वीडियो का होता है। इसी दौरान एक यूजर कमेंट करता है कि वीडियो में नजर आने वाला मुतासरा शख्स बिल्कुल फिल्म मेकर जस्टिन पॉट जैसा लगता है, जो काफी अरसे से लापता है। ये बात मार्गो को शदीद खौफ और झटके में मुब्तला कर देती है। मंजर आर्थर की तरफ कट होता है, जो नील नामी एक शख्स का पीछा कर रहा होता है, जो दरअसल एक मकामी मशहूर शख्सियत होता है। आर्थर उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। फिर वो अपने हाथ पर चाकू से खुद को जख्मी कर लेता है और गाड़ी से बाहर निकलकर मदद मांगने का नाटक करता है। नील उसे देखकर मदद की पेशकश करता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, जहां वो आर्थर को अपना हाथ पट्टी करने की इजाजत देता है। दोनों एक दूसरे से अपना तारुफ करवाते हैं और इसी दौरान जब नील कुछ देर के लिए मशगूल होता है तो आर्थर मौका पाकर उसके घर की चाबियां चुरा लेता है। फिर उसकी नज़र नील के एक और अवार्ड पर पड़ती है और हमें अंदाजा होता है कि वो शख्स दरअसल एक मशहूर टीवी एंकर है। चंद लम्हों बाद नील का बेटा ड्रियो घर आता है ताकि अपने वालिद से अपना फोन ले सके। इस मौके पर आर्थर भी नील का शुक्रिया अदा करता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। कुछ देर बाद नील अपना ही ब्रॉडकास्ट देख रहा होता है कि अचानक घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। वो अपने फोन को तलाश करने जाता है जो चार्ज पर लगा होता है, लेकिन हैरत की बात यह होती है कि वो वहां से गायब होता है। उलझन का शिकार नील एक टॉर्च उठाकर फ्यूज बॉक्स चेक करता है, जहां वो देखता है कि स्विचेस को टेप लगाकर बंद किया गया है। जैसे ही नील टेप हटाकर लाइट्स वापस ऑन करता है, वही मास्क पहना हुआ शख्स अचानक उस पर हमला कर देता है। ये मास्क पहना हुआ शख्स दरअसल आर्थर ही होता है, जो उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगने के बाद नील कुछ देर लड़ने की कोशिश करता है, मगर जल्द ही उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। चंद ही लम्हों बाद ड्रियो के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है तो आर्थर फौरन कोने में छुप जाता है। ड्रियो अपने वालिद की हालत देखकर सख्त परेशान हो जाता है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर उसे भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मार्गो अपने रेडिट पोस्ट के कमेंट्स पढ़ रही होती है, जहां एक सारिफ लिखता है कि ये वीडियो उन्हें फेसेस ऑफ डेथ की याद दिलाती है। मार्गो इस नाम को जब सर्च करती है तो उसे मालूम होता है कि फेसेस ऑफ डेथ 1978 की एक पुरानी हॉरर फिल्म है, लेकिन ये ऑनलाइन दस्तयाब नहीं और सिर्फ होम वीडियो की सूरत में मिलती है। लिहाजा मार्गो राइन के फिल्मी कलेक्शन के पास जाती है और वहां उसे फेसेस ऑफ डेथ की एक कॉपी मिल जाती है, जिसे वो फौरन चलाना शुरू कर देती है। फिल्म देखते हुए उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि उसने जो एग्जीक्यूशन वाली वीडियोस देखी थी वो बिल्कुल इसी फिल्म के सीन्स की नकल करती हैं। कुछ देर बाद राइन घर वापस आ जाता है तो मार्गो उससे फेसेस ऑफ डेथ के बारे में सवाल करती है। राइन उसे बताता है कि ये उन इब्तिदाई वायरल वीडियोस में से एक थी जो इंटरनेट से पहले भी मशहूर हुई थी और उसे असल वाकयात के तौर पर मार्केट किया जाता था, लेकिन दरअसल वो सब जाली था, जिस पर बहुत से लोग नाराज भी हुए थे। इसके बाद मार्गो राइन को वो परेशान कुन कुतलों वाली वीडियोस दिखाती है, जिन्हें राइन भी गालिबन जाली समझता है। ताहम मार्गो उसे बताती है कि उसे यकीन है कि कोई ऐसा पागल मौजूद है जो इस फिल्म के मनाजिर को हकीकत में दोहरा रहा है, लेकिन उसका बॉस इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहा। इसलिए वो फैसला करती है कि कीनो के डेटाबेस से असल वीडियो फाइल्स हासिल करेगी और मेटा डाटा के जरिए उनके अपलोड सोर्स को ट्रेस करेगी ताकि वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। राइन उसके लिए फिक्रमंद होता है, मगर मार्गो अपने इरादे में मजबूत रहती है और उससे उसकी छुपी हुई रेजर लिपस्टिक उधार मांग लेती है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि मार्गो अपने स्टील टो बूट्स के अंदर एक हिस्सा काटकर उसमें हार्ड ड्राइव छुपाती है ताकि उसे दफ्तर में स्मगल कर सके। फिर वो जॉश के पास जाती है और उसे इसी बैंड के कंसर्ट के टिकट ऑफर करती है, जिसे वो पसंद करता है और साथ ही इसके कुछ काम खुद संभालने की पेशकश भी करती है। जॉश उसकी पेशकश पर खुश हो जाता है और टिकट कबूल कर लेता है, जिसके बाद वो मार्गो को अपने कंप्यूटर तक रसाई दे देता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, मार्गो दोबारा स्टिमुलेंट्स लेकर सिस्टम में मौजूद असल वीडियोस तलाश करना शुरू करती है और तमाम फाइल्स डाउनलोड कर लेती है। इसी दौरान मंजर आर्थर की तरफ कट होता है, जो अपने घर के तहखाने में पहुंचता है, जहां उसने समैंथा, नील और ड्रियो को कैद कर रखा होता है और करीब ही उसकी बनाई हुई खौफनाक फिल्म चल रही होती है। वो फिर नील को उसके पिंजरे से बाहर निकालता है और उसे एक दूसरे कमरे में ले जाता है ताकि अपनी अगली वीडियो फिल्म कर सके। आर्थर नील को एक जाली दरवाजे के सामने खड़ा करता है, जिसके इर्द गिर्द पुतलों से बने पुलिस एहलकार बंदूकें थामे हुए होते हैं। फिर आर्थर नील को एक पिस्तौल और सिर्फ एक गोली देता है और उसे चैलेंज करता है कि वो इस पर फायर करे।
आर्थर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और जैसे ही नील गोली लोड करता है, अचानक तमाम पुतले उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और वो मौके पर ही हलाक हो जाता है। आर्थर इस मंजर को एक अजीब और परेशान कुन जोश के साथ देखता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि उसके जूतों के कवर्स पर खून के छींटे गिर गए हैं, जिससे वो वाज़ेह तौर पर नागवार महसूस करता है। वो फौरन बाथरूम की तरफ जाता है ताकि अपने ऊपर लगा हुआ खून साफ कर सके। इसी दौरान उसके मोबाइल फोन पर मुसलसल नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। लोग वीडियोस की तारीफ करते हैं, ये समझे बगैर कि ये सब हकीकी है, और एक शख्स तबसरा करता है कि ये सब किसी स्टूडेंट फिल्म की तरह लगता है, जिससे आर्थर शदीद गुस्से में आ जाता है। गुस्से की हालत में वो एक जाली अकाउंट के जरिए जवाब देता है और इस सारिफ को धमकी देता है कि वो मोहतात रहे, क्योंकि वो खुद भी अगला शिकार बन सकता है। इसी दौरान मार्गो घर पर अपनी डाउनलोड की हुई फाइल्स चेक करती है और आखिरकार उसे वही असल वर्जन मिल जाता है, जिसमें सर को चलने वाली वीडियो मौजूद होती है। वो फौरन उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है और लोगों से मदद मांगती है कि ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुई थी। उसकी ये हरकत रायन को परेशान कर देती है। कुछ ही देर बाद आर्थर भी ये पोस्ट देख लेता है। अपने कंप्यूटर स्किल्स इस्तेमाल करते हुए वो मार्गो को एक नुकसानदेह लिंक भेजता है, जो समंथा की गुमशुदगी से मुताल्लिक एक जाली आर्टिकल की तरफ ले जाता है ताकि उसे गुमराह किया जा सके। बदकिस्मती से मार्गो उस लिंक पर क्लिक कर देती है और उसे मालूम होता है कि समंथा इसी शहर जैक्सनविल में लापता हुई थी, जहां वो इलेक्ट्रिक चेयर वाली वीडियो में दिखाया गया फिल्म मेकर भी गायब हुआ था। उसी वक्त आर्थर भी उसे ट्रेस करना शुरू कर देता है और चंद ही मिनटों में वो इसका पूरा नाम और पता मालूम करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ रायन सूरत-ए-हाल को इंतहाई खतरनाक होते देखकर फौरन लैपटॉप बंद कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी होती है और हमें मालूम होता है कि आर्थर मार्गो की वो बदनाम जमाना ट्रेन वाली फुटेज तक पहुंच चुका है। अगले दिन मार्गो पुलिस स्टेशन जाती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि जैक्सनविल में एक साइकोपैथ है जो लोगों को कत्ल करके स्नफ फिल्में बना रहा है, लेकिन अफसर उसकी बात सुनकर उसे बताती है कि किसी केस को खोलने के लिए लाशें या वाज़ेह क्राइम सीन जरूरी होता है और ये मामला इसके अलावा एक दूसरे स्टेट का भी है, इसलिए फौरी कार्रवाई मुमकिन नहीं। अफसर भी मार्गो को ट्रेन वाले वाक़े वाली लड़की के तौर पर पहचान लेती है और समझती है कि वो शायद ये सब बातें बना रही है। मायूस मार्गो काम पर जाती है, लेकिन उसका की कार्ड काम नहीं करता और जॉश इमारत से उसका सामान उठाए बाहर आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसे पिछली रात उसकी मेज पर स्टिमुलेंट्स मिली थी। गुस्से में भरी मार्गो उसे खौफनाक वीडियोस के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता, जिस पर वो शदीद मायूसी के साथ वहाँ से चली जाती है। बाद में घर पर मार्गो आर्थर की बनाई हुई ताज़ा वीडियो देखती है जिसमें नील को दिखाया गया होता है और ये उसे शदीद ज़हनी तौर पर हिलाकर रख देती है। वो फौरन रेडिट पर एक लंबी पोस्ट लिखना शुरू करती है जिसमें वो पूरी तफसील से बताती है कि अब तक उसके साथ क्या कुछ हो रहा है और ये सब वीडियोस कैसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे ही वो पोस्ट मुकम्मल करने के करीब होती है, रायन उसे रोक देता है। वो रायन को बताती है कि उसकी बहन की मौत के बाद जब पुलिस ने वो फुटेज ऑनलाइन लीक कर दी थी तो लोगों ने इस सानेहा को तफरीह बना लिया था और हंसी मजाक में बदल दिया था, ये भूल करके उसमें हकीकी इंसान थे जिनकी जिंदगियां तबाह हो गईं। इसलिए वो इतनी शिद्दत से कातिल को तलाश करना चाहती है ताकि उसकी बहन की मौत बेमानी ना लगे। ये सुनकर रायन जज्बाती हो जाता है और उसे एहतियात करने का कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्गो अपनी पोस्ट मुकम्मल करती है और उसे अपलोड कर देती है। इसी रात मास्क पहना हुआ आर्थर अपनी महारत इस्तेमाल करते हुए मार्गो के अपार्टमेंट में चुपके से दाखिल हो जाता है और फिर जब आर्थर को लाउंज में रायन नजर आता है तो वो फौरन उस पर हमला कर देता है। घबराहट में रायन मदद के लिए चीखता हुआ मार्गो को आवाज देता है, लेकिन आर्थर उसे गले पर वार करके खामोश कर देता है। चंद लम्हों बाद आर्थर मार्गो को भी एक नशा आवर इंजेक्शन लगा देता है और वो बेहोश होने से पहले अपने दोस्त रायन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती रह जाती है। कुछ वक्त बाद मार्गो होश में आती है और खुद को आर्थर के तहखाने में एक पिंजरे के अंदर देखती है। वो देखती है कि उसके सामने ड्रू और समंथा भी मौजूद हैं, जिससे वो शदीद खौफजदा हो जाती है। करीब ही उसकी बहन की मौत वाली वीडियो बार बार लूप में चल रही होती है, जो उसकी जहनी अजियत को मजीद बढ़ा देती है। इसी दौरान आर्थर अपने लैपटॉप पर अगली वीडियो की तैयारी कर रहा होता है और मार्गो की रेडिट पोस्ट देख लेता है। साथ ही उसे इस वाक़े से मुतल्लिक एक न्यूज़ रिपोर्ट भी नजर आती है, लेकिन ये सब चीज़ें उसे खौफजदा करने की बजाय मजीद दिलचस्पी और अजीब सा सुकून देती हैं। दूसरी तरफ मार्गो को अपना कोट करीब ही पड़ा नजर आता है और वो बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंचती है, जहां वो रायन की दी हुई रेजर लिपस्टिक हासिल करने में कामयाब हो जाती है। ऊपर वाले हिस्से में मास्क पहना हुआ आर्थर एक लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और रायन की लाश पर तेजाब डाल देता है। वो कहता है कि यही अंजाम होता है ऐसे मदाखलत करने वाले रूममेट्स का, लेकिन देखने वाले सिर्फ उसे एक शो या तफरीह समझकर हंसते रहते हैं और यकीन नहीं करते कि ये सब हकीकी हो सकता है। इसी दौरान मार्गो छोटी ब्लेड की मदद से अपनी रस्सियां काटकर खुद को पिंजरे से आज़ाद कर देती है और फिर वो समंथा को भी आज़ाद करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। मार्गो ड्रू से वादा करती है कि वो उसके लिए वापस आएगी।
फिर दोनों लड़कियां ऊपर की तरफ जाती हैं, जहां समंथा फौरन वहां से भागना चाहती है, लेकिन मार्गो इसरार करती है कि उन्हें आर्थर के जराइम के सबूत भी साथ लेने होंगे। वो आर्थर का कंप्यूटर देखती है और उसमें मौजूद फाइल्स को तलाश करना शुरू करती है, और इसी दौरान उसे एक हार्ड ड्राइव मिलती है जिसमें आर्थर के तमाम जराइम की असल गैर एडिटेड शुदा फुटेज मौजूद होती है। इसी दौरान समंथा शीशे का दरवाजा तोड़कर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो खुद को पिछले सहन में एक बाढ़ से घिरा हुआ देखती है। वो जल्दी से बाढ़ फैलाकर भागने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से आर्थर उसे देख लेता है और स्नाइपर राइफल से उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ मार्गो हार्ड ड्राइव जिसमें सबूत मौजूद होते हैं और एक मोबाइल फोन उठाकर घर से फरार होने की कोशिश करती है। वो भी वही बाढ़ फैलाकर बाहर निकलती है जैसे समंथा ने किया था, जबकि आर्थर गैराज से उस पर फायर करता है, लेकिन वो गोली से बच निकलती है। जैसे ही वो बाहर पहुंचती है, उसका दोबारा आर्थर से सामना हो जाता है, जो उसे दोबारा गोली मारने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी निशाना खता हो जाता है और जल्दी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। मार्गो मौके का फायदा उठाते हुए 911 डायल करती है और वहां से भागकर एक सड़क पर पहुंचती है, जहां वो एक फैमिली से मदद मांगती है, लेकिन उसकी खून आलूद हालत देखकर वो डर जाते हैं और गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। खुशकिस्मती से उसकी कॉल ऑपरेटर से कनेक्ट हो जाती है, लेकिन मार्गो को शदीद सदमा होता है जब उसे एहसास होता है कि वो हार्ड ड्राइव जिसमें सबूत थे गोली लगने से खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ आर्थर, जो समंथा को दोबारा घर के अंदर लेकर आया होता है, खुद पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि वो एक वाकये की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है। कुछ ही देर बाद मार्गो 2 पुलिस अफसरान के साथ वापस उसी घर पहुंचती है और उन्हें पूरी तफसील से बताती है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन अफसरान के अंदर जाने से पहले उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है कि नीले फूलदार शर्ट पहने एक औरत किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस आई है। अफसर जब ये तफसील देखता है तो उसे शक होता है कि ये मार्गो ही है, लेकिन फिर भी वो आर्थर से बात करने के लिए घर की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस को देखकर आर्थर फौरन खुद को बेहद पुरसुकून और मुतासिर दिखाने की कोशिश करता है और दावा करता है कि मार्गो एक ज़हनी तौर पर बीमार लड़की है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और उसके बारे में झूठे इल्जामात लगा रही है। इससे मार्गो शदीद गुस्से में आ जाती है और चीख चीख कर मुतालबा करती है कि अफसरान घर के अंदर जाएं। जब आर्थर उसकी बहन का जिक्र करता है तो वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे पुलिस को लगता है कि वो ज़हनी तौर पर बीमार है। नतीजतन वो उसे वहां से हटाकर ले जाते हैं, जबकि आर्थर कहता है कि वो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। बाद में मार्गो को अस्पताल ले जाया जाता है और उधर आर्थर को एहसास होता है कि उसकी हार्ड ड्राइव और फोन गायब हैं। वो मार्गो को एक पैगाम भेजता है जिसमें वो धमकी देता है कि अगर 1 घंटे के अंदर हार्ड ड्राइव वापस ना की गई तो बाकी 2 अफराद को मार दिया जाएगा। डॉक्टर को मार्गो के जिस्म पर फैंटेनल के आसार मिलते हैं, जिससे वो ये समझती है कि मार्गो नशावर अद्वियात की आदी है और उसे इलाज की पेशकश करती है। इसीलिए डॉक्टर उसे एक नई दवाई नारकैन देने का फैसला करती है, जो फैंटेनल के असरात को खत्म करके ओवरडोज को रोकने में मदद देती है। बाद में मार्गो अस्पताल से बाहर निकलती है और देखती है कि अमले के कुछ अफराद फेसेस ऑफ डेथ की रिक्रिएट की गई वीडियोस देख रहे हैं जो आर्थर ने बनाई होती हैं। ये मंजर उसे शदीद जहनी सदमे और गुस्से में मुब्तला कर देता है। फिर वो टैक्सी लेकर आर्थर के घर वापस जाती है और रास्ते में वो नारकैन का इस्तेमाल करती है ताकि खुद को होश में रख सके। कुछ ही देर बाद वो घर पहुंचती है, जहां आर्थर उससे हार्ड ड्राइव के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो एक महफूज जगह पर है और जैसे ही उसे यकीन हो जाएगा कि सब महफूज हैं वो बता देगी। आर्थर उससे कहता है कि वो अपनी जेबें खाली करे, लेकिन उसके पास सिर्फ एक लिपस्टिक होती है, इसलिए वो उसे रखने देता है और उसे अंदर ले जाता है। अंदर पहुंचकर आर्थर उसे बताता है कि लोग उसे पसंद करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हों, न्यूज़ चैनल्स हों या हत्ता कि हुकूमत और पुलिस भी। मार्गो इससे पूछती है कि वो फेसेस ऑफ डेथ को दोबारा क्यों बनाता है, तो वो जवाब देता है कि क्योंकि एल्गोरिदम को रीमेक्स पसंद आते हैं। इसके बाद आर्थर उसे एक तारीक कमरे में ले जाता है, जहां मार्गो खौफ से चीख उठती है जब वो समंथा और ड्रू की लाशें देखती है। फिर आर्थर उसे मजबूर करता है कि वो खुद को फैंटेनल का इंजेक्शन लगाए और कोई चारा ना होने की वजह से वो बेदिली से ऐसा कर देती है। वो रोती है और रहम की भीख मांगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत खराब होती जाती है और वो आखिरकार बेहोश हो जाती है। इसके बाद आर्थर अपनी एहतियात कुछ देर के लिए छोड़ देता है और हथियार नीचे रख देता है, लेकिन जैसे ही वो मार्गो की लाश घसीटने की कोशिश करता है वो अचानक होश में आ जाती है और एक छोटे ब्लेड से उस पर हमला कर देती है। दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो जाती है और आर्थर घबरा जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो अपने ही खून में लथपथ हो चुका है। एक सख्त और वहशियाना लड़ाई के बाद वो किसी तरह मार्गो पर काबू पा लेता है और उसे प्लास्टिक बैग के जरिए दम घुटकर मारने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से मार्गो करीब पड़ा हुआ एक लंबा रॉड उठा लेती है और आर्थर की टांग में घोंप देती है। वो फिर इसी रॉड का इस्तेमाल करते हुए उसे सीने में कई बार वार करती है और उसे शदीद जख्मी कर देती है। आर्थर आखिरी सांसों पर होता है जबकि मार्गो एतराफ करती है कि उसने नारकैन लिया था।
वो अपनी कमीज फाड़कर एक छुपा हुआ कैमरा दिखाती है जो वो पहले से अपने साथ लेकर चल रही थी, जिसका मतलब है कि उसने पूरा वाकया रिकॉर्ड कर लिया है। वो फौरन आर्थर के कंप्यूटर की तरफ जाती है और पूरी फुटेज अपलोड करना शुरू कर देती है, जबकि आर्थर मरने के करीब होते हुए भी हंसता रहता है और अपने मोबाइल पर फेसेस ऑफ डेथ का आखिरी हिस्सा चलाता रहता है। मार्गो वीडियो अपलोड मुकम्मल करती है और इसके बाद आर्थर का मोबाइल फोन दूर फेंक देती है। वो फिर सीधी बैठकर अचानक बगैर किसी वजह के हंसने लगती है। जब वीडियो आखिरकार प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाती है और साइट की मॉडरेशन से गुजर जाती है तो वो एक तरह की फतह के एहसास में हंस पड़ती है, लेकिन जल्दी उसे ये देखकर एक झटका लगता है कि वीडियो पर आने वाले कमेंट्स इंतहाई बेहिस और गैर संजीदा हैं। लोग सूरत-ए-हाल को मजाक और तफरीह के तौर पर ले रहे हैं और इसे कोई हकीकी वाकया नहीं समझ रहे। आखिरकार ये सब देखकर वो मजीद बेचैनी और दर्द का एहसास महसूस करती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।